महकमा सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया और सिंगापुर से 2 तैयारों के ज़रिए 325 मुसाफिर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। इन तमाम का मरकज़ी हुकूमत के कोविड कवायद के मुताबिक RT-PCR टेस्ट किया गया, जिनमें एक खातून कोरोना वायरस से मुस्बत पाई गई। इसे फौरी तौर पर गच्चीवोली के टिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और इसके नमूनों को जेन्यूम टेस्ट के लिए भेज दिया गया, क्योंकि ये दोनों ममालिक बरतानिया और सिंगापुर हुकूमत हिंद की जानिब से ऐलान करदा ख़तरे वाले 12 ममालिक में शामिल हैं जहां ओमिक्रॉन वायरस शुरू हुआ है। डायरेक्टर सेहत डॉक्टर श्रीनिवास ने कहा कि खातून की उम्र 35 साल है। इसकी जीनोम रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने कहा कि 2 तैयारों में बरतानिया और सिंगापुर से आने वाले 325 मुसाफिरीन में तेलंगाना के 265 मुसाफिर, आंध्र प्रदेश के 70 और महाराष्ट्र, कर्नाटक और दीगर रियासतों के शहरी भी शामिल हैं। చూడండి, 2 డోసులు వేసుకొని RT-PCR టెస్ట్ చేయించుకున్న తర్వాత కూడా 72 గంటల ముందు మళ్ళీ మన దేశంలో అడుగుపెట్టిన తర్వాత పాజిటివ్ వస్తున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అండ్ వాళ్ళు వచ్చే 6 గంటల 5 గంటల జర్నీలో ఇంటర్నేషనల్ జర్నీలో వచ్చేసేసి వేరే వాళ్ళని ముందున్న వాళ్ళని వెనుకున్న వాళ్ళని ఇన్ఫెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. తద్వారా కొత్త వేరియంట్స్ని మన దేశంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగనే మన దేశంలో కూడా ఏదో టైంలో మళ్ళీ కొత్త వేరియంట్స్ డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మనం వేరే దేశాలకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీటన్నిటికి సంబంధించి మీరు కంప్లీట్గా ఏ ప్రాంతంలో అయినా సరే, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కానీ, పని ప్రాంతాల్లో కానివ్వండి, లేకపోతే సినిమా హాల్కి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి, ఒక పబ్లిక్ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి, ఒక పార్క్కి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి, ఒక హోటల్కి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి, మీరు దయచేసి మీ వ్యాక్సిన్ సర్టిఫికేట్ క్యారీ చేయండి. మా హెల్త్ స్టాఫ్ ఎక్కడికక్కడికి రెగ్యులర్గా ర్యాండమ్గా వెరిఫై చేస్తుంటారు. ఓకే, అండ్ వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేస్తాం, వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తాం. ఒకవేళ వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నట్లయితే వ్యాక్సిన్ వేయించుకోమని చెప్పేసి. అండ్ రాబోయే రోజుల్లో దీన్ని మ్యాండేటరీ చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వానికి ఆల్రెడీ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది వైద్యశాఖ తరఫున. ఎందుకంటే వైద్యశాఖకి ప్రజల ఆరోగ్యం ముఖ్యం. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వేవ్లో, సెకండ్ వేవ్లో ఎన్ని లక్షల మంది వ్యాధి బారిన పడ్డారో, ఎన్ని వేలాది మంది ఈ వ్యాధి ద్వారా ప్రాణాలు కోల్పోయో, మళ్ళీ అలాంటి పరిస్థితులు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం దయచేసి తెచ్చుకోవద్దు. ఆనరబుల్ సీఎం గారు దీనికి సంబంధించి అన్ని రకాల క్లియర్ కట్ గైడ్లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ అంతా కూడా దీనికి సంబంధించి అన్ని రకాల విధి విధానాలు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి మళ్ళీ ఆనరబుల్ సీఎం గారి దృష్టికి, క్యాబినెట్ దృష్టికి తీసుకుపోయేసేసి నిర్దేశితమైన గైడ్లైన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అప్పటి వరకు కూడా తెలంగాణ వైద్య ఆరక్షక తరఫున ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తుంది అంటే, దీనికి మీరు పానిక్ కావాల్సిన అవసరం లేకపోయినప్పటికీ పూర్తి అప్రమత్తత, పూర్తి జాగ్రత్త ఉండాల్సిన సమయం ఆసనమైంది. ఇంతకుముందే చెప్పాం, ఇది మనకి మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక లాంటిది. అది ఫస్ట్ వేవ్ కానివ్వండి, సెకండ్ వేవ్ కానివ్వండి, ఎలాంటి హెచ్చరికలు లేకుండా వచ్చింది. అదృష్టవశాత్తు ఈ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ ఉందో ఆల్రెడీ సౌత్ ఆఫ్రికా గవర్నమెంట్ వెల్ ఇన్ అడ్వాన్స్ మనకి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. సో మనం అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా ఇది మనకు ఒక మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక అని చెప్పి మనం అనుకోవడం ద్వారా దానికి సంబంధించిన జాగ్రత్తలు, మాస్క్ సంబంధించి, భౌతిక దూరం పాటించడం దగ్గర నుంచి, ఈ లార్జ్ గ్యాదరింగ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం దగ్గర నుంచి, చేయకపోవడం దగ్గర నుంచి, అలాగనే వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం దగ్గర నుంచి, ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవచ్చు. తద్వారా ఈ థర్డ్ వేవ్ నుంచి మన తెలంగాణ రాష్ట్రం సురక్షితంగా బయటపడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. మన ఇండియా ఆమె యూకే నుంచి కాల్ చేయడం జరిగింది. వారు 2-3 డేస్లో వస్తుంది వాళ్ళ రిపోర్ట్. 3 డేస్, మా నార్మల్గా 3 డేస్ వాళ్ళ అందరినీ టెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించి. వారందరికీ RT-PCR పరీక్షలు చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ నెగిటివ్ రావడం జరిగింది. ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వివిధ రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం, మన రాష్ట్రంలో ఉన్న వ్యక్తుల్ని మనం ఆల్రెడీ ఈ మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 239 మంది ఉన్నారు యూకే నుంచి కానీ సింగపూర్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. సో వీళ్ళందరికీ కూడా వీళ్ళ హెల్త్ స్టేటస్ అంతా కూడా ట్రాక్ చేస్తున్నాం, మానిటర్ చేస్తున్నాం. మా జిల్లా స్థాయి అధికారులు దీని మీద పనిచేస్తున్నారు. ఈ మధ్యకాలంలో ఈ 8 రోజుల్లో ఎవరికైనా సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయితే వాళ్ళకి పరీక్షలు చేస్తాం. అలాగే 8 రోజులు మళ్ళీ కూడా RT-PCR పరీక్షలు చేస్తాం ప్రభుత్వం ద్వారా. ఆమె హెల్త్ స్టేటస్ పూర్తిగా బాగుంది. ఆమెకి ఎలాంటి లక్షణాలు లేవు. ఓకే, బట్ ఆయన రంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన వ్యక్తి. అది అంతా కూడా మనకి రాబోయే రోజుల్లో అర్థమవుద్ది. ఓకే, ఎందుకంటే ఇప్పటికి ఉన్న ప్రాథమిక ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఇది చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. డెల్టా వేరియంట్ కంటే 6 రెట్లు ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవుతుందని ప్రూవ్ అయింది. ఎందుకంటే మనం గత 4 రోజుల నుంచే 4 దేశాల నుంచి 24 దేశాలకి ఈరోజు వెళ్ళిపోయింది. అంటే అది ఎంత ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్, అది కూడా ఆల్రెడీ రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత. ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ సంబంధించి ఆల్రెడీ రిస్ట్రిక్ట్స్ అయిపోయినాయి.
చాలా దేశాలు ప్రయాణికులను ఎక్కడికక్కడ స్టాప్ చేయడం జరిగింది. అయినా సరే మనం ఇప్పుడు 24 దేశాలకు ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది. రేపో మాపో మన దేశంలో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ అది వస్తుందా రాదా అనేది పక్కన విషయం పెడితే మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నది మనకు ముఖ్యం. అంటే దాని సివియారిటీ ఏదైనా సరే ఒకేసారి కోట్లాది మందికి ఇబ్బంది పెట్టినప్పుడు ఎంతో కొంత హాస్పిటలేషన్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. దాని సిమ్టమ్స్ మైల్డ్ ఉండొచ్చు, సివియర్ హెడేక్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే సివియర్ మయాలజీ అంటే బాడీ పెయిన్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఎక్కువగా నీరసంగా ఉండొచ్చు. ఇవి కూడా లక్షణాలు. ఇవి కూడా ఎంతో కొంత డాక్టర్ కేరు, మెడికల్ అసిస్టెన్స్ కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలాంటి పరిస్థితులు కూడా మనం తెచ్చుకోవద్దు అనేది మన ఉద్దేశం. మనం కూడా కోరుకునేది ఏంటంటే ఇది ఎంత త్వరగా వీలైతే ఎంత త్వరగా వీకెన్ అయిపోవాలి. వీకెన్ అయిపోయినప్పుడు మాత్రమే ఇది ఒక పాండమిక్ నుంచి ఒక ఎండమిక్ స్టేజ్కి పోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ ఎనీ పాండమిక్ 2 సంవత్సరాలు 2.5 సంవత్సరాల్లో ఎండమిక్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇంతకుముందు కూడా మనకి చరిత్రలో కూడా అదే ప్రూవ్ అయింది కాబట్టి మనం ఆ దిశగా వెళ్తున్నాం. బట్ ఈ టైంలో ఇంకా కొంచెం మరింతగా జాగ్రత్తగా ఉండటం ద్వారా, మరిన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా దీన్ని పూర్తిగా टीआरएस के 6 अरकान कानून साज कौंसिल में से 5 ने हलफ ले लिया। बंडा प्रकाश के सिवा कडियम श्रीहरि, कौशिक रेड्डी, वेंकटरामी रेड्डी, रविंद्र रेड्डी, गुत्ता सुखेंदर रेड्डी को कौंसिल के उबूरी सदरनशीन भोपाल रेड्डी ने हलफ दिलाया। बंडा प्रकाश के राज्यसभा से इस्तीफे के कबूल होने के बाद वो कौंसिल के रुकन के तौर पर हलफ लेंगे। कानून साज असम्बली कोटे के तहत कौंसिल के लिए मुंतखब 6 अरकान के इंतखाब के सिलसिले में रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया था। 22 नवंबर को रिटर्निंग ऑफिसर ने एक सर्टिफिकेट हवाले किया जिसमें इस बात की तस्दीक की गई थी कि इनकी जगह 6 अरकान को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया गया है। एमएलए कोटे में कौंसिल के लिए मुंतखब होने वालों में कडियम श्रीहरि, गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, रविंद्र रेड्डी, कौशिक रेड्डी और वेंकटरामी रेड्डी के अलावा बंडा प्रकाश शामिल हैं। कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन से निपटने और टीका अंदाजी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए काबीनी सब कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़रा हरीश राव, तारक रामाराव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर सेहत हरीश राव ने 31 दिसंबर तक 100% टीका अंदाजी के प्रोग्राम को मुकम्मल करने की कलेक्टर्स को हिदायत दी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ज़िला कलेक्टर्स और महकमा सेहत के अहदेदारों से खिताब करते हुए वज़ीर तारक रामाराव ने कोरोना की इम्कानी तीसरी लहर का सामना करने के लिए तमाम तैयारियों का मशवरा दिया। काबीनी सब कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सामने कोरोना के पहली और दूसरी लहर के तजुर्बात हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए इम्कानी तीसरी लहर का सामना करने के लिए तमाम एहतियाती इक़दामात करने चाहिए। अफवाहों से मुताल्लिक़ WHO से जो भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं उनको आवाम तक पहुँचाने के लिए इक़दामात करने की भी हिदायत दी गई है। बिलखुसूस अज़ला के हॉस्पिटल्स में बेड्स की दस्तियाबी और ऑक्सीजन का स्टॉक मौजूद होने का आवाम को भरोसा दिलाते हुए उनके शुकूक व शुबहात को दूर करने का भी उन्होंने मशवरा दिया। उप्पल भगायत लेआउट में 1,35,408 मुरब्बा गज़ पर फैले हुए 44 डेवलप करदा प्लॉट्स के ई ऑक्शन का आज से आगाज़ हुआ। ये ई ऑक्शन हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हमडा की जानिब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मरकज़ी हुकूमत के इंटरप्राइज MSTC लिमिटेड की है। ऑक्शन का आगाज़ हो गया है। ये ऑक्शन 2 सेशंस में जारी रहेगा। जुमला 12 प्लॉट्स का हर्राज किया जा रहा है। ये प्लॉट्स मुख्तलिफ साइज़ों और मुख्तलिफ मुरब्बा गज़ के हैं। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला आंजहानी चिन्नारेड्डी की बरसी के मौके पर उनकी खिदमात को याद किया। कांग्रेस के कायदीन ने इस मौके पर उनकी समाधि पर फूल निछावर किए और उनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर कांग्रेस के लीडर मर्री शशिधर रेड्डी ने कहा कि चिन्नारेड्डी ने समाज के तमाम तबक़ात को मसावी मौक़े फ़राहम करने के इक़दामात किए थे। सिर्फ इंतखाबात के लिए उन्होंने फ़लाही स्कीमात शुरू नहीं किए थे, बल्कि अवाम के लिए इन स्कीमात का आगाज़ किया गया था। इस मौके पर कांग्रेस के साबिक़ रुकन राज्यसभा हनुमंतराव ने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने की तहरीक दरअसल चिन्नारेड्डी ने शुरू की थी। इस तहरीक के सिलसिले में उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी को मरकज़ बनाया था। ఎప్పటివరకైతే సమాజంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల వారికి సరైనటువంటి అవకాశాలు కల్పించమో నిజమైనటువంటి అభివృద్ధి సాధించలేమని చెప్పి మనసా వాచా నమ్మినటువంటి వారు కేవలం ఎన్నికల గురించి ప్రవేశపెట్టేటువంటి పథకాల్లాగా కాకుండా కమిట్మెంట్తో చేసినటువంటి, అందుకే ప్రజలు ఆయనకు ఎప్పుడు కూడా నమ్మినటువంటి వారు.
తెలంగాణ ఉద్యమం మొదలుపెట్టిందే ఆయన. 69లో ఆయన ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఉద్యమం తీసుకొచ్చి పోరాటం కొనసాగుతూ మరి సోనియా గాంధీ ఆలోచన మేరకే ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని పూర్తి చేసుకున్నారు. కానీ ఇవాళ ఉన్నటువంటి నాయకులు చెన్నారెడ్డి పేరు కూడా ఎత్తారండి, మల్లికార్జున్ పేరు ఎత్తారండి. ఇంత అన్యాయం అయితే ఎవరైతే మొదలుపెట్టిన వారిని మర్చిపోవద్దు కదా. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్నామంటే వారి స్ఫూర్తితో, వారి పోరాటంతో. నిరుద్యోగ యువత గురించి కానీ, ఈరోజు ఉన్న మనకు వనరులకు సంబంధించి మనం ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలని కానీ, మరి గొప్ప నాయకుడు, ఒక గొప్ప అడ్మినిస్ట్రేటర్, మనకు సేవలు అందించిన మర్రి చెన్నారెడ్డి గారిని స్మరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. ఎవరి తప్పున్నా చెప్పేటువంటి వాడు, దాన్ని ఈ రకంగా సర్చ్ చేసుకోవాలని చెప్పేటువంటి వాడు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆయన మించిన వాడు ఎవడు లేడు. ఆలోచన ఎక్కువ, ముందు ఏమేమి జరుగుతుందో చెప్పగలిగిన శక్తివంతుడు ఆయన. ఏదైనా మాట చెప్తే చేయాలనేటువంటి మడం తిప్పమని ఆయన ఎప్పుడు చెప్పలేదు. చెప్తే మాట నిలబెట్టుకునేవాడు, అంతే. దట్స్ ఆల్. చాలా గొప్ప పెద్ద మనిషి మా కాలంలో. दिल्ली में कांग्रेस और टीआरएस की दोस्ती और रियासत में दुश्मनी से खुद कांग्रेस के रियासती कायदीन तशवीश का शिकार हैं। पार्लियामेंट के जारिया मानसून इजलास में टीआरएस के साथ मिलकर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अहाते में कांग्रेस के मरकजी कायदीन की जानिब से एहतजाज किए गए और धरने दिए गए, जिस पर तेलंगाना कांग्रेस का एक गोशा हाईकमान से नाराज़ है और वो पार्टी की क़यादत के इस इक़दाम से नाराज़ है। जारिया पार्लियामेंट के इजलास के आगाज़ से लेकर आज तक टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट के एहतजाज में कांग्रेस के अरकान साथ दे रहे हैं। उसी तरह राज्यसभा से 12 अपोजिशन अरकान की मअतली पर कांग्रेस की जानिब से मुनक्किदा कुल जमाती इजलास में भी टीआरएस पार्लिमानी पार्टी के सरबराह केशव राव ने शिरकत की थी। दिल्ली में जारी इन तब्दीलियों से तेलंगाना कांग्रेस के बाज़ कायदीन इसे बेहतर करार दे रहे हैं और इसका खैर मकदम कर रहे हैं, और उनका कहना है कि तेलंगाना में बीजेपी को उभरने से रोका जा सकता है। डीजीपी महेंदर रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत और तेलंगाना पुलिस रियासत को माओ नवाजों की सरगर्मियों से पाक बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने ज़िला कोत्तागुड़म के चरला में वाक़ बेस कैंप के दौरे के बाद कोत्तागुड़म और मुल्क की सरहदों पर माओ नवाजों से मुतासरा इलाक़ों के दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए माओ नवाजों की सरगर्मियों की रोकथाम के सिलसिले में पुलिस के इक़दामात की सताइश की। उन्होंने कहा कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ग्रे हाउंड्स और दीगर पुलिस के अहदेदारों की मुश्तरका मसाई के साथ माओ नवाजों की लानत से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि ज़िला कलेक्टर्स और ज़िलाई अहदेदार आवाम के मसाइल की यकसुई कर रहे हैं और वो सड़कों का काम कर रहे हैं। इसी दौरान पुलिस अहदेदारों ने सियासी कायदीन को मशवरा दिया कि वो PLGA हफ्ते के पेश नज़र दूर दराज के इलाक़ों में ना जाएं। डीजीपी ने SP से ख्वाहिश की कि माओ नवाजों की तकारीब को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएं। ఇక్కడ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ఎస్పీ సునీల్ దత్ గారి ఆధ్వర్యంలో, అట్లాగే ములుగు భూపాల్పల్లి జిల్లాల్లో సంగ్రామ్ గారి ఆధ్వర్యంలో చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మావోయిస్టు రహిత రాష్ట్రంగా ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే ఉండే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ అహర్నిశలు కృషి చేస్తుంది. ఈ సందర్భంగా మనకి CAPF, సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్, వారి సహాయ సహకారాలతోటి, అట్లాగే మన గ్రే హౌండ్స్, SIB, అలాగే జిల్లా పోలీస్ వ్యవస్థలు, అలాగే పోలీస్ స్టేషన్ లెవెల్లో ఉన్న అధికారులు, సిబ్బంది అందరి సహాయ సహకారాలతోటి ఈరోజు మావోయిస్టు సమస్యని మనం అధిగమించగలుగుతున్నాం. ఈ ప్రాంతాల అభివృద్ధి కొరకు జిల్లా కలెక్టర్సు, అట్లాగే ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్సు, మిగతా వారి సహాయ సహకారాలతోటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల అవసరాలను ఎప్పటికప్పుడు తీర్చడం. तेलंगाना से धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए टीआरएस के MPs ने लोकसभा में प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने ऐवान में इस मसले पर कहा कि तेलंगाना से धान की खरीदारी मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है।
ये जिम्मेदारी मरकज़ी हुकूमत पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पिछले 7 साल से रियासत में किसानों को काश्त के लिए मुनासिब पानी, ज़राई मकसद के लिए 24 घंटे बिजली और रैतु बंधु स्कीम की वजह से रियासत में धान की पैदावार में काफ़ी इजाफा हो गया है और तेलंगाना धान की पैदावार में मुल्क में सरफहरिस्त हो गई है। ताहम मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना से धान की ख़रीदारी नहीं कर रही है। का इशू है साहब, तेलंगाना का फार्मर्स का पैडी का इशू है। पिछले 3 दिन से जो है ना सर हम ये गवर्नमेंट का दृष्टि को लेके आया है। हम लोग अभी हम लोग का जो है ना साहब ये तेलंगाना में क्या हुआ साहब, अभी पिछले 7 साल में पानी देने का वजह से, फ्री करंट का वजह से और उसी तरीके से जो है ना सर उसी तरीके से हम लोग को जो है ना सर राइट बंधु का वजह से पैडी वी आर नंबर 1 इन पैडी में नंबर 1 इन इंडिया साहब। ये पैडी प्रोक्यूरमेंट जो है ना साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये गवर्नमेंट जो है सर पैडी प्रोक्यूरमेंट नहीं। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में सैयद असलम नामी शख्स ने अपनी जान का ख़तरा होने की पुलिस से शिकायत की और पुलिस से मदद की ख्वाहिश की है। तिगलकुंटा अकबर दरबार होटल के करीब रहने वाले इस शख्स ने कहा कि मुजफ्फर, इब्राहिम और आसिफा से इसकी जान को ख़तरा है। इसने कहा कि गलत रास्ते पर जाने के लिए ये तीनों उस पर दबाव डाल रहे हैं और इस सिलसिले में हरासा भी कर रहे हैं। इसने कहा कि ये तीनों कल उसके मकान पहुंचे और उसकी बीवी बच्चों को धमकियां भी दी। वालेकुम, मेरा नाम सैयद असलम है। मैं तिगलकुंटा अकबर दरबार होटल कने रहता हूँ। मेरा मकान वहीं पर है। मैं जो है फलकनुमा पीएस कने आकर जो है अभी कंप्लेन करा, जो है अपने क्या बोलते अपने मुजफ्फर, इब्राहिम और आसिफा ये तीनों के नाम पे। क्यों बोले तो मैं जो है काम करके जी रहा हूँ तो मेरे को गलत रास्ते पे जाने के लिए मेरे को मजबूर कर दे रही। मैं जो है छोड़ दिया सब, छोड़ के मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी मेरे बीवी बच्चों को देख के गुजार लेना चाह रहा हूँ, मगर फिर भी ये लोग मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं। तो मैं आकर यहाँ फलकनुमा पीएस में कंप्लेन करा। रात में भी आके अटैक करे ये लोग। मैं नहीं था तो मेरे संग फ़ोन पे गाली गुफ्तार करे, मेरे घर पे आके जो मेरे बीवी बच्चों को धमका के जा रहे हैं कि जान से मार देते इसको बोल के। मैं अभी जो है कंप्लेन वही लिखा के करके आया। ये देखिए क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले अच्छा रिस्पांस दिए मेरे को देखे बोले कि अगर कोई आए तो मेरे को फ़ोन करो बोल के फ़ोन नंबर दिए। आप परेशान नको, आप जाके आराम से रहो घर पे बोलकर बोले। कहाँ रहते हैं लोग? ये लोग जो है एलबी नगर ये नंदना वनम में रहते और मुजफ्फर जो नाम है उन्होंने जो है पिसल बंडे पे रहते। कितने लोग आए थे आपके घर पे? ये लोग मेरे घर पे रात में 8 आदमी आए थे, 7 से 8 आदमी आए थे। क्या करके गए? आके जो है अगर हमारे कैसे अगर आके नहीं मिल रही है तो जो है इनको जो है नहीं छोड़ेंगे, हम जो है जान से भी मार सकते बोल करके। आप पुलिस से क्या चाह रहे हो? मेरे को जो है पुलिस से ये गुजारिश है मेरी कि जो है हुकूमत से कि मेरी जो है जान को धोखा है। मेरे को जो हो सकता है आप लोगों से मेरे से जल्द मेरे केस की कार्रवाई कीजिए। ये लोगों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। मेरे को मुजफ्फर जो है बहुत टॉर्चर कर दे रहा। नहीं भाई, लोग आने की वजह क्या है? असल ये लोगों के थोड़े बहुत पैसे देने का हूँ भाई। मेरे को खर्चे में कुपा कर दिए ये लोग खुद दिलाए, लोगों से दिला के जो है मेरे को खर्चे में कुपा करके ये लोग आप मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं। मैं थोड़े थोड़े करके देता हूँ भाई, एकदम तो मेरे कने नहीं है पैसे। मेरी यही गुजारिश है कि थोड़े थोड़े देता हूँ, मेरे को हरासमेंट मत करो। मेरी जान को धोखा है। अगर मेरे को कुछ हुआ तो ये मुजफ्फर, इब्राहिम, आसिफा ये तीनों जिम्मेदार है इसके। अस्सलाम। शहर के इलाके गच्चीबोली में फैशन डिज़ाइनर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक 32 साला शताब्दी मुंडल मुतवतिन रियासत गुजरात शहर की एक IT कंपनी में खिदमत अंजाम देते हुए गच्चीबोली के एक अपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर मुलाजमीन प्रियंका रेड्डी और गीता माधुरी के साथ मुकीम थी। मालूम हुआ कि वह साबिक में IT कंपनी से वाबस्ता थी, ताहम उस वक्त एक खानगी इदारे में फ़ैशन डिज़ाइनर के तौर पर काम कर रही थी। कल सुबह इसकी दोनों साथी काम पर गई हुई थी। शाम में जब वो वापस हुई तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। वॉचमैन को इत्तला दी गई। दरवाज़ा तोड़कर देखने पर शताब्दी मुंडल की नाश फांसी से लटकती हुई पाई गई। डॉक्टर शोएब खान, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट फिजिशियन, केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स ने कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से बचने के 5 तरीक़ेकार से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि 11 नवंबर 2021 को इसका पता चला। आलमी तंजीम सेहत ने इसको तशवीशनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि कई साइंसदानों, डॉक्टर्स और माहिरीन की जानिब से इस पर तहकीक का काम हनूज़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की इस नई शक्ल के बारे में फ़िक्रमंदी की कोई बात नहीं है, लेकिन हमको एहतियात करना चाहिए। उन्होंने एहतियात के मुख्तलिफ तरीक़ेकार भी बताए।
السلام علیکم. میں ڈاکٹر شعیب خان, کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ, ٹرانسپلانٹ فزیشین, کیئر ہاسپٹل بنجارہ ہلز. لاسٹ 4-5 ڈیز سے کنٹینیو میرے کو میسیجز, کالز, اور میرے دوستوں کو بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ لوگ کو بھی یہی کالز اور میسیجز آ رہے ہیں, بھائی یہ اومائکرون ہے کیا؟ بیسیکلی B1.1.529 یہ ویریئنٹ ہے جس سے WHO نے نام دیا ہے اومائکرون, اور یہ ڈیٹیکٹ ہوا دنیا میں 11 نومبر 2021 کو. ڈیٹیکٹ کرنے والے آپ میں, یہ واٹس ایپ یونیورسٹی والے لوگ نہیں ہیں, سائنٹسٹ نے اسے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اور WHO نے اسے پاسٹ 19 ڈیز میں قرار دیا ہے کہ یہ اٹ از اے میٹر آف کنسرن, اور ایسا کوئی میجر تھنگ نہیں, اٹس جسٹ اے میٹر آف کنسرن, جس کے اوپر ویریس سائنٹسٹ, بڑے بڑے ڈاکٹرز اور بڑے بڑے فارمیسی کے لوگ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر یہ چیز ہے کیا, واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. ابھی تک ایسی کوئی ٹھوس یا مضبوط انفارمیشن ہمارے تک آئی نہیں ہے, تو آپ کو ہمارے کو پینک ہونے کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈونٹ لسن ٹو یہ لوگ بول رہے ہیں, یہ نو بول رہے ہیں, واٹس ایپ پہ میسج آ جا رہا, فیس بک پہ ایسا آ جا رہا, انسٹاگرام پہ ایسا آ جا رہے ہیں. لسن ٹو اونلی میڈیکل پروفیشنلز, اور سائنٹسٹ لیول پہ ہی وہ لوگ کی بات ہی اوتھینٹک رہتی ہے. آپ کو ہمارے کو کیا کرنا ہے, پریکٹیکلی سولوشن کیا ہے, کیا نہیں, ڈفرنٹ ڈسکشن آل ٹوگیدر. پریکٹیکل سولوشن 5 پرنسپلس ہیں. فرسٹ کہ آلویز یوز یور ماسک, جب بھی آپ گھر کے باہر نکل رہے ہیں یوز یور ماسک. نمبر 2 ہینڈ سینیٹائزیشن, ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریے اور ناک میں پانی چڑھائیے وضو کے ٹائم پہ. نمبر 3 جب بھی کسی سے ملے 2 گز کی دوری اختیار کریں. نمبر 4 اوائڈ پبلک گیدرنگس. نمبر 5 اگر آپ پبلک گیدرنگ میں جانا پڑ رہا, میک شیور کہ وہاں پہ وینٹیلیشن ہے. یہ ہم کر سکتے ہیں, اس کو کریں گے, اور انشاءاللہ اومائکرون کو بھی بیٹ کریں گے. پرانا پل علاقے میں پولیس کی جانب سے حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف چلائی گئی مہم کے دوران ایک خاتون کو دورے پڑنے لگے. یہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ بائک پر جا رہی تھی کہ پولیس نے ان کی بائک کو روک دیا. اچانک خاتون کو دورے پڑنے لگے. اس واقعے کے نتیجے میں اس علاقے میں ٹریفک جام ہو گئی. اس شخص نے پولیس کے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کیا. اسی دوران ایک شخص نے اس کو ٹریفک پولیس کی جانب سے پکڑنے پر اپنی گاڑی کو برہمی کے عالم میں آگ لگانے کی بھی کوشش کی. سر آپ لوگ 1 منٹ, آپ کو جواب دینا پڑتا ہے سر, پبلک کا سوال ہے, ہمارا سوال نہیں ہے. آپ لوگ ڈرنک اینڈ ڈرائیو ڈیلی چیک کرتے, ٹھیک ہے, ریگولر روٹین ہے یہاں کا, لیکن آپ لوگوں کا کانسنٹریٹ پورا ڈرنک اینڈ ڈرائیو چیکنگ پہ, ٹریفک پہ نہیں ہے سر. میں بھی گزرتا ہوں یہ روڈ سے, میرے کو بھی کئی بار پرابلم ہوتا ہے گزرنے میں. میں ڈیلی جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں, میرے کو یہاں یہ 1 منٹ کے راستے میں میرے کو 15 منٹ لگتا ہے سر یہاں سے کراس ہونے میں. آپ آنسر نہیں دے رہے سر. ٹریفک لائن جواب ہی نہیں دے رہے نا. نہیں سر, ٹریفک ایس ایچ او کون ہے سر؟ راجندر نگر میں پولیس نے گھر گھر تلاشی مہم چلائی. کل شب چلائی گئی اس مہم کے دوران پولیس نے نائجیریا سے تعلق رکھنے والے 40 باشندوں کو حراست میں لے لیا, جس میں 6 تا 7 باشندوں کے ویزے کی مدت ختم ہو گئی تھی. اس مہم میں 150 ملازمین پولیس نے حصہ لیا. پولیس کی ٹیموں نے بنڈلا گوڑا اور رادھا نگر علاقوں میں تقریباً 200 مکانات کی تلاشی لی. پولیس نے 40 نائجیریائی باشندوں کو حراست میں لے لیا, جن سے پوچھ تاچھ اور دستاویزات کی جانچ پر 6 تا 7 باشندوں کے ویزے کی مدت کارآمد کے ختم ہونے کا پتہ چلا.
उनके मुल्क वापस कर दिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि ये अफराद वीज़ा की मुद्दत कारआमद के अख्तिताम के बावजूद गैर क़ानूनी तौर पर हिंदुस्तान में मुकीम थे। इसी दौरान इन बाशिंदों की पुलिस से बहस व तकरार हो गई। उनका कहना है कि वो तलबा हैं और तालीम के लिए हिंदुस्तान आए हैं। हालिया दिनों के दौरान नाइजीरिया के बाशिंदों की जानिब से गैर क़ानूनी सरगर्मियाँ अंजाम देने की भी इत्तलात हैं, जिस पर पुलिस ने चौकसी इख्तियार करते हुए ये मुहिम अंजाम दी। अलवाल पुलिस स्टेशन के हुदूद में हकीमपेट करीमनगर राजीव राधारी पर आरटीसी ड्राइवर को वैन ने टक्कर दे दी। वो ड्यूटी ख़त्म करने के बाद सड़क अबूर कर रहा था। इस ड्राइवर की शिनाख्त यादव रेड्डी के तौर पर की गई है। दूध की वैन के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में वैन ने ड्राइवर को टक्कर दे दी। आरटीसी ड्राइवर इस हादसे के नतीजे में बरसर मौका हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी दौरान हकीमपेट बस डिपो के करीब ड्राइवर्स ने एहतजाज किया और कहा कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं, जिसके नतीजे में सड़क हादसात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ज़िला रंगारेड्डी के बडंगपेट श्री श्री होम्स कॉलोनी में एसोसिएशन की जानिब से 2018 में कायम पार्क के मुकाम पर लगाए गए शेड को निकालने की कोशिशों के खिलाफ एतराज़ किया गया। एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों और बाज़ अहम शख्सियात के ताउन से ये शेड बनाया गया था। एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री श्री होम्स के मालिक ने यहाँ पर कई वेंचर किए, ताहम उन्होंने पार्क कायम नहीं किया। इन अफराद ने कहा कि पार्क की अराजी पर गैर मजाज कब्ज़ा किया गया है। लक्ष्मा रेड्डी नामी शख्स ने कमिश्नर बल्दिया को इस सिलसिले में शिकायत की कि उसकी अराजी पर ये शेड गैर मजाज तौर पर तामीर किया गया है। ज़िला सिद्दीपेट में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक कार ज़रई कुएं में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में मां बेटे की मौत हो गई, जबकि नाशों को निकालने की कोशिश में गोताखोर भी गर्क हो गया। ये वाक़या ज़िले के दुबाग के चिट्टापुर के पास पेश आया। कल दोपहर दुबाग से चिट्टापुर की सिमत जाने वाली कार का टायर फट पड़ा, जिसके नतीजे में कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे ज़रई कुएं में गिर पड़ी, जिसकी गहराई 60 ta 70 फीट बताई गई है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला माहिर गोताखोरों के साथ मुकाम हादसे पर पहुंच गया और कार को कुएं से बाहर निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। 2 मोटरों की मदद से कुएं से पानी निकाला गया। इसी दौरान क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला जा रहा था कि गोताखोर नरसिमलू भी इसी रस्सी से बांधकर कार के साथ ऊपर आ रहा था। अचानक वो कार में फंस गया और उसकी मौत हो गई। సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక మండలం చిట్టాపూరు శివార్లో ఈ రామాయంపేట మెయిన్ రోడ్లో ఒక కారు బావిలో పడడం జరిగింది. అది 1:15కు జరిగినట్టు తెలిసింది మనకు. అది పడగానే మా గౌరవ సిద్దిపేట సిపి శ్రీ జోయల్ సారు ఆధ్వర్యంలో వారి సూచనల మేరకు ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా ఒక 10 మంది గజ ఈతగాళ్లను, ఒక 2 క్రేన్లను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాము. ఇదే కాకుండా సుమారుగా 35 ఫీట్ల నీళ్లున్నాయి లోపల బావిలో. ఆ నీళ్లను కూడా ఒక 5 మోటార్లు తెప్పించి మా పోలీస్ తరఫు నుంచి నీళ్లను బయటికి తీస్తున్నాము. ఆ నీళ్లను తీసి ఆ వెహికల్ కూడా మనకు అరగంటలో బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దాంట్లో ఒక 2 ఉన్నట్టు తెలుస్తున్నది. ఒక ప్రశాంత్ అనే అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ ఇద్దరు కూడా దాంట్లో ఉన్నట్టు తెలుస్తున్నది. ఒక అరగంటలో మనకు అది బయటకు వస్తే ఇంకా పూర్తి వివరాలు తెలుస్తాయి. तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी टिम्स में ओमिक्रॉन शक्ल से मुतासिरा अफराद के लिए खुसूसी वार्ड्स बनाए गए हैं। 200 बिस्तरों के साथ 2 फ्लोर्स का इस दवाखाने में इंतज़ाम किया गया है। 25 ICU बिस्तर और 175 ऑक्सीजन वाले बिस्तरों को कोरोना की इस नई शक्ल के इम्कानी मुतासरीन के लिए रखा गया है। सबसे ज़्यादा ख़तरे वाले ममालिक से आने वाले अफराद के RT-PCR मुआयने एयरपोर्ट पर किए जा रहे हैं। उनके मुस्बत पाए जाने पर उनको इलाज के लिए टिम्स भेजा जाएगा। टिम्स के अहदेदारों ने कहा कि दवाखाने की 3री और 4थी मंजिल को बतौर ख़ास बैरूनी ममालिक से वापस अफराद के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर RT-PCR मुआयने करवाए जा रहे हैं और इसमें मुस्बत पाए जाने पर नमूनों को CCMB लैब को भेजा जाएगा। इन नमूनों के जेनोम सीक्वेंसिंग जांच की जाएगी, जिसके मनफी नतीजा और मरीज़ में किसी किस्म की अलामात ना होने पर उनको घर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी।
غالب دکن حضرت سید جلال الدین توفیق حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی صدی تقاریب کے سلسلے میں طرح حمدیہ مشاعرہ 4 دسمبر کو 9 بجے شب رحمتیہ منشن چنچل گڑا میں منعقد کیا جائے گا۔ بزم توفیق کے ذمہ داروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حضرت توفیق نہ صرف اردو بلکہ فارسی کے اشعار بھی کہتے تھے۔ ان کے کلام میں ایک ندرت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بزم توفیق کا مقصد یہ ہے کہ حضرت توفیق کے کلام کو عام کیا جائے۔ وہ غالب اور مومن کی طرح اشعار کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا منفرد مشاعرہ ہے۔ اس روحانی محفل میں شرکت کرتے ہوئے اس کو کامیاب بنانے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ اردو ادب کے مشہور شاعر حضرت سید جلال الدین توفیق حیدرآبادی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بزم توفیق کا 1996 میں نامزد کیا گیا تھا، ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ اس کے تحت ہر ماہ مشاعرے منعقد ہوتے ہیں۔ حضرت جلال الدین توفیق حیدرآباد کو گزرے ہوئے 100 سال ہو رہے ہیں۔ ان کا انتقال 22 اگست 1921 کو ہوا تھا۔ اس موقع پر ان کی تقاریب منعقد کی جا رہی ہے۔ 7 سالہ تقاریب بزم توفیق کے زیر اہتمام 4 دسمبر کو طرحی حمدیہ مشاعرہ منعقد ہو رہا ہے، جو رحمتیہ منشن میں۔ اس مشاعرے میں نہ صرف حیدرآباد کے مشہور شعراء بلکہ چند پٹن، بڑودہ، گجرات کے بھی شعراء حصہ لے رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک شاعر، بہت بڑا شاعر گزرا ہے، جن کو مولانا حالی نے کہا تھا کہ اگر میرے استاد غالب زندہ رہتے تو آپ کے کلام کو خوب داتے تھے۔ اس کے بعد سے انہیں غالب دکن کا خطاب دیا گیا ہے۔ غرض ایک مشہور معروف شاعر ہے۔ اردو اکیڈمی تلنگانہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس شاعر کے نام پر ایک ایوارڈ رکھا جائے تاکہ حیدرآباد کے نامور شعراء کی فہرست میں انہوں بھی آ جائے۔ انشاءاللہ خدا حافظ۔